15 से 17 सितंबर के दौरान मुंबई में आयोजित होने वाला विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण विश्व मसाला व्यापार के लिए नए अवसर खोलेगा। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। It's about the forthcoming World Spice Congress. As Mr. Jha has briefed you about this event, following up with the legacy set forth in the year 1990 onwards. We have been organizing this World Spice Congress. This year it's going to be the 14th edition of the World Spice Congress, coming up at Mumbai, Navi Mumbai, at the CITCO Convention Center. This year we are organizing this event in collaboration with all the exporters associations who are in the spices sector, and we also have technical partners. FFDC, Flavors and Fragrance Development Center, Kanauj is a technical partner, and S-Bank is our knowledge partner. And as I have mentioned, Spices Board is the main organizer. We are joined by exporters associations like IPSCA, Indian Pepper and Spice Trade Association, ISPIA, ISEF, FISS, and also ICC in organizing this event. It will be a 3-day event. The main purpose is to connect Indian stakeholders with their counterparts abroad who are involved in spices trade. And over the years, this event has served the sector very well in strengthening the business connections, and also it has served well as a knowledge dissemination platform wherein we learn from the advantages that are taking place in the spices sector abroad. It facilitates a common learning based on mutual experiences. It facilitates sharing of our issues to find answers to the issues. So it brings in lots of advantages for the sector. And on the strengths of these 14 World Spice Congresses, and also based on the efforts put in by the spices industry, facilitated by the Spices Board, the spices sector has been doing exceedingly well when it comes to export over the years. If you see, the Spices Board was established in the year 1987, and at that point of time our exports were somewhere around 300 crores. Now we are, in the last 3 years we have been hovering at around $4 billion mark in export value realization, which means more than 30,000 crores, from 300 crores to more than 30,000 crores. So that is the growth pattern in the spices sector. Right now, spices export contribute to about 9% of the India's agricultural exports, and nearly 40% of India's total horticultural exports. And as Mr. Jha has mentioned, spices has various strengths. It's a kind of important ingredient in our food traditions. And if you see, सर बताएं कि जो एग्जीबिशन नवी मुंबई में लग रही है, इसका थीम्स क्या है और क्या क्या है वहाँ पर, सारी चीज़ें कब से लग रही है? देखिए, ये वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ये 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है। ये नवी मुंबई में सिडको कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर ये आपका ऑर्गेनाइज हो रहा है, और ये 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है।
14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है और ये इंटरनेशनल इवेंट है। तो इसका जो थीम है ये स्पाइस मसाला, तो उसी स्पाइस को जो है हमने एक्सपैंड कर दिया है। तो स्पाइस में जब हम डील करते हैं तो ये भी हमें देखना होगा कि वो सस्टेनेबल हो, ट्रेसिबिलिटी भी हो, इनोवेटिव भी हो, फिर आपका उसका ये जो है फिर उसका फर्दर फूड सेफ्टी में भी इसका यूसेज हो। तो ये सारे स्पाइसेस ये इसमें कवर्ड किए हैं थीम्स, और इसी बेसिस पे हमारा क्या है, 2 साइड बाय साइड इसका ये हमारा इवेंट होगा। एक तो होगा आपका एग्जीबिशंस, जहाँ पर मोर देन 160 एग्जीबिटर्स अक्रॉस द इंडिया रहेंगे, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स रहेंगे, प्रोसेसर्स रहेंगे, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स में भी हैं, वो सारे रहेंगे। थीम बेस्ड रहेगी, कमोडिटी बेस्ड रहेगी, एक्सपीरियंस जोन रहेगा। एक्चुअली आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं थेरेपीज़, क्योंकि स्पाइसेस क्या है, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी इसका यूसेज है। तो थेरेपी में भी यूज़ है, एरोमा में भी यूज़ है, कलर में भी यूज़ है, फ्रैग्रेंस में भी यूज़ है, एसेंशियल ऑयल्स है, इसका एक्सट्रैक्ट्स है, ऑलिजिन्स है। तो मेगा इसका यूसेज है हर इंडस्ट्री में, परहैप्स मेडिसिनल वैल्यूज़ में भी इसका है, अदर देन द फूड प्रोडक्ट्स है। कितनी तो इंडस्ट्रीज हर वहाँ पर चीज़ की वहाँ पर जो है हमने 165 स्टॉल्स लगा हुए हैं, और क्योंकि ये आपका जो पार्टिसिपेशन होगा अराउंड 1000 पार्टिसिपेशन इंडिया होगा। में कितनी और भारत से, बाहर से कितनी आ इंडिया रही से है? तो 800 के आसपास ये है एक्सपेक्टेड है, बाहर से अराउंड 200 के आसपास रहेंगे, इंक्लूडिंग फॉरेन बायर्स एंड स्पीकर्स एंड। अभी हम $4 बिलियन की बात करते हैं, तो अगर ये स्पेस सितंबर में लग रहा है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, ग्रोथ क्या देखते हैं? ग्रोथ पैटर्न तो जैसे मैंने बताया, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है इसका 9% के आसपास है। तो 9% के आसपास है, तो आप इसका और हमारा 2030 विजन भी है। तो 2030 विजन है इसका $10 बिलियन टच करने का, और अभी जो है सो 4 बिलियन के आसपास हमारा ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर से। और हमने काफ़ी अच्छा जो है सो ग्रोथ किया है, क्योंकि 35 ईयर्स जो हमने कोरल इनाग्रेशन हमने सेलिब्रेट किया था, तो 350 करोड़ की हमारी एक्सपोर्ट थी। 350 करोड़ से जो है हमने 31,000 करोड़ की अचीवमेंट की है 35 साल में। तो आप देख सकते हैं कि कितना मेगा जंप है, और इसका प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी इंटरनेशनली इसका वेल एक्लेम्ड है और अप्रिशिएटेड है, और पोटेंशियल इसका काफ़ी अच्छा है इसका इंटरनेशनल मार्केट में। D2B इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रोथ करेगी, फिर उसके बाद कुछ कितना टाइम उनको, फिर स्पेस कितना मिल पाएगा? B2B में इम्पोर्टेंट क्या होता है, आजकल आप देखेंगे जो एक्सेलेंस अवार्ड्स है, एक्सेलेंस अवार्ड्स में ये भी देखा जाता है कि नए स्टार्टअप्स कितने हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया, इसमें स्कोप क्या है, सिर्फ जो चिल्ली हम प्रोड्यूस करते हैं वो चिल्ली तक ही सीमित नहीं रहता है, वो चिल्ली का फर्दर हम उसको क्या वैल्यू एडिशन करते हैं। चिल्ली में क्या होता है, तीखापन होता है, उसमें कलर होता है, उसका जो होता है सर्टेन इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है केमिकल, वो बेनिफिशियल फॉर स्किन होती है। आपकी जो फैटी सेल्स है उसको बर्न करने के लिए यूज़ में आती है, मल्टीपर्पज़ डायमेंशनल यूज़ है उसका। तो हर फील्ड में उसका यूज़ होता है, खाने के सिवाय कॉस्मेटिक्स में होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में होता है, आयुर्वेदिक में होता है, फार्मास्यूटिकल्स में होता है, तो मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसका। थैंक यू।